पेंटेकोस्ट। ईद पेंटेकोस्ट के बाद 22वां एतवार। आइए हम खुदा की हुजूरी में अपने सरों को झुकाएं। लेट अस प्रे। ओ गॉड, you have taught us that by loving you and one another we fulfill your law. Give us grace to love you with our whole heart and our neighbors as ourselves, that we may live as your true children. Through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and always. Amen. पर्वत गहरे सागर, सूरज चांद सितारे। ऊंचे पर्वत गहरे सागर, सूरज चांद सितारे। बादल आए मह बरसाए, कुदरत की बलिहारी। हाथों को जोड़े, दिल को खोले, आए हैं शरण तेरी। हाथों को जोड़े, दिल को खोले, आए हैं शरण तेरी। पापों को प्यारे प्रभु क्षमा कर, जान मेरी ये पुकारे। Soft as the voice of an angel, reading a lesson unheard. Oh, with a gentle persuasion, whispers a comforting word. Wait till the darkness is over.
Praise the Lord, everyone. Today's reading has been taken from the book of Matthew, chapter 5, verses 1 to 12. The book of Matthew, chapter 5, verses 1 to 12. Now, when Jesus saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him, and he began to teach them. The Beatitudes, he said. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called the children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you. This is the word of God. Thank you. Praise be to God. Jai Jai Yeshu, Jai Jai Yeshu, Jai Jai Yeshu, Jai Jai Yeshu, Jai Mrityunjay, Jai Jai Kar, Sirjanhar, Palanhar, Palanhar, Jai Jai Yeshu, Jai Jai Yeshu. तीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, तीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, जय जन रंजन जय दुख भंजन, जय जन रंजन जय दुख भंजन, जय जयकार सिरजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु। हर तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा, हर तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा, जय जगत्राता जय सुखदाता, जय जगत्राता जय सुखदाता, जय जयकार सिरजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु। मृत्यु बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा, मृत्यु बंधन भंजन हारा, अक्षय
pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. I praise Thee, Lord, for cleansing me from sin. Fulfill Thy word and make me pure within. Fill me with fire where once I burned with shame. Grant my desire to magnify Thy name. Lord, take my life and make it wholly Thine. Fill my poor heart with Thy great love divine. Take all my will, my passion, self, and pride. I now surrender, Lord, with Thee abide. Oh, Holy Ghost, revival comes from Thee. Send a revival, start the prayer in me. Thy word declares Thou wilt supply our need. For blessing now, O Lord, I humbly plead. गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। प्रभु यीशु के महान और सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का वचन सुनने से पूर्व हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना मांगे। धन्यवाद देते हैं वापस मानी एक बार फिर से इस मुबारक समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम एक बार फिर आपके वचन पर मनन और चिंतन करें। खासकर आपसे प्रार्थना मांगते हैं कि हमें अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए कि हम पवित्र आत्मा में होके आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो सके, ताकि आपका वचन हमारे जीवन में आनंद और खुशी का कारण बने। हम इस प्रार्थना को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल फरमाइए, आमीन। आज का जो विषय है वो विषय है परमेश्वर अपने संतों में महिमा मंडित है, जिसमें हम उसकी कृपा के धन को देखते हैं। God is glorified in his saints, in whom we see the riches of his grace. अगर हम आज खास करके संत शब्द का अर्थ को समझें तो यूनानी भाषा में इसका अर्थ होता है अलग किए हुए, सेंटिफाई या टू मेक होली। पुराने नियम से ये आइडिया लिया गया है, काफी मिलता जुलता है। पवित्रता और सेपरेटनेस, अलग करना, क्योंकि ये
जो पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर के बारे में इस्तेमाल किया जाता था कि परमेश्वर इज अनअप्रोचेबल, आप परमेश्वर के पास में साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता, और परमेश्वर के मंदिर के उस अति पवित्र स्थान में जिसे हम होली ऑफ होलीज कहते हैं, द मोस्ट होली प्लेस, वहां पे सिर्फ हाई प्रीस्ट या परम प्रधान का याजक हम कह सकते हैं, सिर्फ वो ही जा सकता था और साधारण मनुष्य वहां नहीं जा सकता था, क्योंकि वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी शिकायना, उसकी ग्लोरी वहां पे होती थी और बड़े सावधानी के साथ अंदर जाना होता था। और हम देखते हैं कि ये अलग किए हुए जो शब्द है उसको सेंट में दर्शाया जाता है संत शब्द के द्वारा। लेकिन नए नियम में जब हम देखते हैं तो नए नियम में हम देखते हैं कि संत पौल 6 बार अपनी पत्रियों में लिखते हैं अलग अलग चर्चेस को, और वहां पे उन्हें संत कह के संबोधित करते हैं। तो नए नियम में इसका अर्थ क्या है? नए नियम में संत उन्हें कहा जा रहा है, उन लोगों को कहा जा रहा है जो परमेश्वर की शिक्षाओं पर चलते हुए अपने जीवन को बिताते हैं। Those who are following the teachings of Jesus Christ in their daily lives, उन्हें यहाँ पे संत कह के संबोधित किया जा रहा है। और ये जो लोग प्रभु में सो गए हैं उनके लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जैसे कैथोलिक चर्च जो कैनोनाइजेशन करता है और उसके अंदर वो लोग उन्हें संत घोषित करते हैं जो प्रभु में सो गए कुछ वर्षों बाद। नहीं, लेकिन यहाँ पे जो नए नियम में बाइबल बता रही है, संत उन लोगों को कहा जा रहा है जो जीवते लोग हैं, जो जीते जी परमेश्वर के हुक्मों को मानते हुए, उसकी शिक्षाओं को मानते हुए अपने जीवन को बिता रहे हैं। उन्हें संत कहा जा रहा है और वो अपने जीवन को पूरा समर्पित करके अपने परमेश्वर के अधीन रह रहे हैं। अगर आज का हम पुराना पहला पाठ पढ़े जो पुराने नियम से लिया गया है, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 31 अध्याय 31 से 34 आयत, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। आई विल मेक अ न्यू कवेनेंट विद द पीपल ऑफ इज़राइल एंड जूडा। और अब हम देखते हैं कि जो पुरानी वाचा थी, जो वाचा परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को जब वो मिस्र की बंधुआई से उन्हें छुड़ा के लेके आया, तो सिनाई पर्वत पर मूसा के द्वारा अपने लोगों को परमेश्वर ने ये आज्ञाएं दी और उनके साथ वाचा बांधी। लेकिन हम देखते हैं कि जिस प्रकार से जैसे ही परमेश्वर ने अपने लोगों को हुक्म दिए, लोगों ने परमेश्वर की वाचा को तोड़ने में देर नहीं लगाई, और हम देखते हैं कि उन्होंने सोने का बछड़ा बना के उसकी उपासना करना शुरू कर दिया और उन्होंने उस वाचा को तोड़ दिया। और मूसा के द्वारा उन तख्तियों को तोड़े जाना इस बात का प्रतीक है कि इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया, और उसके बाद भी इज़राइल और यहूदा के लोग निरंतर परमेश्वर की वाचा को तोड़ते गए और उसके द्वारा वो लोग बंधुआई में चले गए। और परमेश्वर अब कहते हैं यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में कि मैं नई वाचा बांधूंगा। अब ये नई वाचा में क्या खास है? What special is there in this new covenant? बाइबल हमें बता रही है 33 वर्स के अंदर, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पे लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। अब यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं कि अब ये जो व्यवस्था है ये उनके हृदय में लिखी जाएगी। जो जिस प्रकार से पहले परमेश्वर ने स्टोन टैबलेट्स पे लिखा था,
लेकिन अब परमेश्वर हमारे दिल के, हमारे हृदय की तख्तियों पे अपने वचन को लिखेंगे, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे दिल और दिमाग में बस जाए और हम परमेश्वर से जुड़े रहें। जैसे इज़िकियल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 36 अध्याय की 26 और 27 आयत में अगर हम गौर करें, तो वहां पे परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं अपने लोगों को एक नया मन दूंगा, नया हृदय दूंगा, और मैं उनके पत्थर का हृदय निकाल दूंगा और उन्हें मांस का हृदय दूंगा, और उस नई आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर की आज्ञा के अधीन रहें। कि परमेश्वर अब एक नई आत्मा भी देंगे ताकि लोग परमेश्वर के अधीन रहें और उसकी विधियों पर चल सके। और खास बात यह है कि जब वो वचन उनके हृदय में बस जाएगा और जब वो उनके हृदय पे लिख दिया जाएगा, तो आगे परमेश्वर कह रहे हैं तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, कि अब किसी को सिखाने की और आवश्यकता नहीं होगी। जैसे व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय उसकी 7 आयत में हम देखते हैं कि वहां पे आज्ञा देने के बाद, नियम देने के बाद ये कहा गया कि तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, चलते बैठते उठते फिरते तू इसकी चर्चा किया करना। लेकिन अब परमेश्वर कह रहे हैं कि किसी को सिखाने की जरूरत, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब ये वचन उनके हृदय में लिख दिया जाएगा और वो लोग परमेश्वर में एक हो जाएंगे और वो परमेश्वर के नियमों पे चलते हुए अपने जीवन को बिताएंगे और वो परमेश्वर के लोग बनेंगे। और अगर हम यहां पे देखें तो वचन हमारे हृदय में जब बस जाएगा तो हम अपने जीवन के द्वारा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की गवाही दे पाएंगे और हमारे काम उस परमेश्वर के बारे में लोगों को निरंतर आगे बढ़ाते जाएंगे उसकी महिमा के लिए। और फिर हम परमेश्वर के मार्ग से ना भटकेंगे, ना हम गुनाहों में जीवन बिताएंगे और ना हम दुनिया की लालसाओं में खो जाएंगे, क्योंकि हम अपने परमेश्वर के वचन पर अपने जीवन को बिताएंगे। और जैसा आज हमारा सुसमाचार पाठ हमें बताता है, संत मत्ती की सुसमाचार उसका 5 अध्याय 1 से 12 आयत में, वहां पे हम देखते हैं कि फिर अगर हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन होगा तब हम धन्य भी कहलाए जाएंगे। क्योंकि हम धन्य इसलिए होंगे क्योंकि हम मन के दीन होंगे। हाँ, वचन हमारे हृदय में है, हाँ हम परमेश्वर की आज्ञाओं को जानते हैं, तो हम मन के दीन होंगे और हम परमेश्वर के कामों और उसके कार्यों के लिए दुख उठाएंगे, हम पीड़ा सहेंगे और हमारे मन नर्म रहेंगे। हम धार्मिकता के भूखे होंगे, हम दयावंत होंगे, हम मन के शुद्ध होंगे और हम मेल कराने वाले होंगे, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे अपने जीवन को बिताएंगे। खास बात लिखा है 11 और 12 आयत में, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। क्या आज आप परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हुए आपने दुख उठाया है? तो आप धन्य हैं, तो हमें खुश होना है। अगर हम मसीह नाम के लिए सताए जा रहे हैं तो हमें खुश होना है, क्योंकि आगे की आयत कहती है कि तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तब हमें खुश होना है, तब हमें और आनंदित होना है, क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा फल है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि पहले संत यूहन्ना जो दर्शन पाते हैं, उस दर्शन में 1,44,000 लोगों को देखते हैं। उसके बाद 7 अध्याय की 9 आयत में अगर पढ़ें तो वहां एक बड़ी भीड़ है और संत यूहन्ना कह रहे हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो बहुत से लोग हैं। और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता। उनके पास श्वेत वस्त्र हैं, क्योंकि उन्होंने अपने वस्त्र को मेमने के लहू में धोके शुद्ध कर लिया है। और उनके हाथ में खजूर की डालियां हैं। खजूर की डालियां
रोमी साम्राज्य में और यहूदी परंपरा में जब विजय कोई होता था तो खजूर की डालियां हिलाते थे और उनके हाथ में खजूर की डालियां हैं, वो मेमने का जय जयकार कर रहे हैं, वो सिंहासन के सामने खड़े हैं और एक प्रश्न पूछा जा रहा है 13 आयत में। इस पर प्राचीन में से एक ने यूहन्ना से कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? ये वे हैं जो उस महाकलेश से निकलकर आए हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। ये उस महाकलेश से, उस जीवन की पीड़ाओं से, उस जीवन की तकलीफों से निकलकर बाहर आए हैं। दानियल की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसकी पहली आयत में, तब ऐसा संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ ना होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। वो सब बच जाएंगे। समय कठिन होगा, कलेश का होगा, लेकिन जो लोग परमेश्वर के नियमों पर चल रहे हैं वो परमेश्वर के लोग हैं। दे आर द सेंट्स। और उनके लिए बाइबल कहती है कि वो बच जाएंगे और उन्हें कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। तो सारी पीड़ाएं, सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। परंतु हम उस भीड़ में, उस बड़ी भीड़ में जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, अगर हमें उसमें शामिल होना है तो हमें भी अपने जीवन में मसीह की शिक्षाओं को मानते हुए और उसके वचनों को अपने हृदय में बसाते हुए, अपने हृदय पे लिखते हुए, और हम इस जीवन में अपने प्रभु का प्रचार करें, उसकी सेवा करें। चाहे जितनी तकलीफें आए, पीड़ाएं आए, उन पीड़ाओं में भी हम हिम्मत से आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि वो वचन हमारे जीवन में और बहुतों के जीवन में बहुत फल लाए और बहुतों को मसीह की ओर लाने वाला हो सके, और हम भी अपने जीवन को तैयार कर सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक बुलाहट दी कि हम आपके लोग बने। हम अपने हृदय को पिता खोलते हैं कि आपका वचन हमारे हृदय में बसने पाए, ताकि पिता परमेश्वर हम भी आपके नियमों को मानते हुए अपने जीवन को बिताएं, ताकि हमारे द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। होने दीजिए पिता, इस जीवन के संकट में और कलेशों में हम घबराए नहीं, परंतु हम दृढ़ता से आपके नाम का प्रचार करते रहें। हम उन लोगों तक आपका वचन पहुंचाएं जो कि पिता परमेश्वर आपसे अनजान हैं, जो आपकी सच्चाई को नहीं जानते। हम उन लोगों तक आपका वचन को पहुंचाने वाले हो सके। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष और अनुग्रह से मामूल कीजिए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल फरमाइए। आमीन। है हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। है हमारे बाप, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, ऐसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। है हमारे बाप, रोज की रोटी हमारी आज तो हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, वो ही हमारा बल है।
अपराधी को माफ कर दे, उसी तरह तू हमारे अपराधों को माफ कर दे। ऐ हमारे बाप, हमें आज़माइशों में जाने तू ना देना, बल्कि बुराई से बचा, तेरी राह पर चला। ऐ हमारे बाप, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत सर्रो ज़मीं का जलाल है, हमेशा तेरा रहेगा, हमेशा तेरा। आमीन। आइए हम दुआ करें। आए कादिर मुतलक खुदा, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, ये इनायत करें कि आपका पाक रूह आपकी कलीसिया में इस कदर काम करे कि हम अपनी ज़िंदगी को टटोलें और हम अपने अल्फाजों पर ध्यान दें कि खुदाबंद हमारे शब्द दूसरों को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी बादशाहत को बढ़ाने वाले हो सकें। ये इनायत करें अपने बेटे हमारे दरमियानी और फिदिया देने वाले खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of His Son Jesus Christ our Lord, and the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen.